بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ایک عاشق فقیر کی داستان سنائیں گے کہ کیسے اس فقیر کے فاختہ یقین نے اس کو منزل تک پہنچایا اور کیسے محلوں کی شہزادی پہنچ گئی جھوپڑی میں۔ پورا واقعہ جاننے کے لیے ہمارے ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیے گا۔ بلخ کا شہر اپنی خوبصورتی کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ موسم گرما میں لوگ بلخ رخ کیا کرتے تھے۔ اس ملک میں ایک قافلہ آیا جس قافلے میں ایک فقیر تھا۔ اس فقیر کے کپڑے پھٹے پرانے تھے، حالت فقیروں والی تھی اور چہرے پہ اداسی چھائی ہوئی تھی۔ وہ فقیر جب اس شہر میں داخل ہوا تو اس فقیر کو اس شہر میں اپنے لیے سکون نظر آیا۔ اس فقیر نے جھاڑیوں میں اپنی جھوپڑی باندھ لی۔ اسی جھوپڑی میں وہ فقیر رہنے لگا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ شام کا وقت تھا۔ وہ فقیر شہر کی گشت کے بعد واپس لوٹ رہا تھا، لیکن آج نہ جانے کیوں وہ فقیر اداس تھا۔ اپنی طبیعت بہلانے کے لیے وہ ایک خوبصورت باغ میں چلا گیا۔ وہاں پر ایک انسان آیا، فقیر کو غصے سے کہنے لگا کہ تم جہاں سے آئے ہو وہاں فوراً لوٹ جاؤ۔ کیا تمہیں پتا نہیں ہے کہ بلخ کی شہزادی یہاں پر گشت کرنے کے لیے تشریف لا رہی ہے؟ اس فقیر نے جب اپنی نظریں اٹھا کر آگے دیکھا تو فقیر کی نظر شہزادی پر پڑ گئی۔ شہزادی اپنی کزینوں کے جھرمٹ میں آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ فقیر وہیں پر ہی شہزادی کو دیکھتا رہا اور اسی طرح شہزادی سے متاثر ہو گیا کہ فقیر کو ساری رات نیند نہ آئی۔ وہ ساری رات شہزادی کے بارے میں ہی سوچتا رہا۔ اس فقیر کے دل میں شہزادی کے لیے محبت پیدا ہو گئی۔ کچھ دن تو یوں ہی وہ فقیر شہزادی کے یاد میں بے حال رہا، پھر اس نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ وہ فقیر سوچنے لگا کہ اس طرح بیٹھنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، مجھے بادشاہ سے جا کر بات کرنی چاہیے۔ یہ سوچ کر وہ فقیر وہاں سے چل پڑا۔ بلخ دربار لگا ہوا تھا۔ بادشاہ سبھی فریادوں کی فریاد سن رہا تھا۔ بادشاہ سلامت کو ان کے ملازم نے کہا کہ آپ سے ایک فقیر ملنے کے لیے آیا ہے۔ بادشاہ سلامت نے کہا کہ اسے اندر بلا لاؤ۔ بادشاہ جب سب فریادوں کی فریاد سن کر فارغ ہوا تو فقیر سے کہنے لگا کہ بتائیے آپ کی کیا فریاد ہے؟ وہ فقیر کہنے لگا کہ میں آپ کے سامنے ایک ایسی فریاد لے کر آیا ہوں جو میں سب کے سامنے بیان نہیں کر سکتا۔ مجھے آپ تنہائی کا موقع دیں تاکہ میں آپ کو اپنے دل کی بات بتا سکوں۔ جب سارا دربار خالی ہو گیا تو بادشاہ سلامت نے اس فقیر کو طلب کیا۔ وزیر نے اس فقیر سے پوچھا کہ تم بادشاہ سلامت سے کیا فریاد کرنے والے ہو؟ اس فقیر نے صاف صاف وزیر کو کہہ دیا کہ میں شہزادی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وزیر یہ بات سن کر فقیر پر ٹوٹ پڑا، کہنے لگا کہ تم نے اپنے آپ کو دیکھا ہے، کس سوچ سے تم یہ بات کر رہے ہو؟ کہاں شہزادی اور کہاں تم؟ اور سوچ کے بات کرو۔ بادشاہ سلامت نے وزیر کو خاموش کر کے کہا کہ اس میں فقیر کا کوئی قصور نہیں ہے اور ہمارے دین میں ہر غریب اور امیر کو نکاح کا حق ہے، اور فقیر نے تو نکاح کی بات ہی کی ہے، شادی تو نہیں کر لی، اس لیے تم غصہ مت کرو۔ ایسی باتوں کا جواب غصے سے نہیں، تحمیل سے دیا جاتا ہے۔ بادشاہ سلامت نے فقیر سے کہا کہ تم ہمیں ایک ہفتے کا موقع دو، ہم سوچ کر بتا دیں گے۔ بادشاہ کی یہ بات سن کے فقیر کے دل میں امید سی پیدا ہو گئی۔ فقیر کو وہ ہفتہ بھی ایک سال کی طرح لگ رہا تھا۔ فقیر تو ایک ایک پل بہت مشکل سے گزار رہا تھا، اس کے لیے تو ایک دن ہی ایک سال کی طرح ہو گیا تھا۔ وہ بادشاہ بہت نیک دل، رحم دل اور سخی انسان تھا۔ بادشاہ سلامت نے وزیر سے کہا کہ اس فقیر کو فوراً انکار نہ کیا جائے، اس سے اس فقیر کا دل ٹوٹ جائے گا، بلکہ اس کو کسی تجویز کے ساتھ انکار کیا جائے، کوئی ایسی شرط رکھی جائے جسے وہ فقیر پورا نہ کر سکے۔ وزیر کہنے لگا کہ اے بادشاہ سلامت، آپ بالکل بھی پریشان نہ ہو، میں اس کے سامنے ایسی شرط رکھوں گا جسے وہ کبھی بھی پورا نہیں کر پائے گا۔ ادھر اس فقیر بیچارے نے ایک ہفتے کا ایک ایک دن ایک ایک سال کی طرح گزارا اور ہفتے کے بعد وہ بادشاہ کے محل میں حاضر ہو گیا۔ وزیر فقیر سے کہنے لگا کہ شہزادی کے لیے بڑے بڑے شہزادوں کے رشتے آئے ہیں اور تمہارا نام بھی ان شہزادوں میں شامل کر لیا گیا ہے، مگر اس سے پہلے تمہیں ہماری شرط پوری کرنی چاہیے۔ یہ سن کر فقیر کے دل میں ایک کرن سی جاگ گئی۔ فقیر مسکرا کے جلدی سے بولا کہ مجھے بتائیے کہ کیا حکم ہے، مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ وزیر بولا کہ ہماری شہزادی کو ہیرے بہت پسند ہیں، تم ہماری
शहजादी के लिए एक सैया रंग का हीरा लेकर आओ। फकीर बोला कि ये तो बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं इसे पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगा। मैं चाहूँगा कि वो हीरा मैं आप लोगों को ला कर दूँ। और मैंने सुना है कि सैया रंग का हीरा बर्फीली पहाड़ों की एक पहाड़ जो सैया रंग की होती है, इस पहाड़ में मौजूद होता है। फकीर अब अपनी झोपड़ी में वापस आ गया और अपनी शर्त पूरी करने के लिए बड़ा परेशान था। वो रात भर अल्लाह ताला से फरियाद करता रहा। वो फकीर रात भर रोया। सुबह जब हुई तो इसके दिल में अल्लाह ताला की तरफ से उम्मीद की किरण जग गई। फकीर अब सुबह होते ही इस हीरे की तलाश में निकल पड़ा। कोसार की वादियों को तारीकी ने जकड़ लिया, मगर वो फकीर चलता ही रहा। थक हार कर एक जगह पर बैठ गया। इस खतरनाक जगह पर इस फकीर को दरिंदों की आवाजें भी सुनाई दी, लेकिन वो फकीर हार ना माना। इस फकीर ने रात वहीं पर गुजारी। सुबह होते ही इस फकीर को एक बुजुर्ग ने जगाया और कहा कि बेटा, ये सोने की जगह नहीं है। आज सुबह ही एक चट्टान टूट कर गिर गई है। तुम अपना रास्ता ढूंढो और चले जाओ, वरना यहाँ पर सैलाब आ जाएगा। फकीर वहाँ से घबरा कर उठा और अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। इस फकीर को रास्ते में इस टूटी हुई चट्टान के अंदर एक चमकता हुआ पत्थर दिखाई दिया। इस फकीर ने जब सैया रंग के चमकते हुए पत्थर को देखा तो फकीर की खुशी की इंतहा ना रही। इसे यकीन हो गया कि ये वही चमकता हुआ हीरा है जिसे वो तलाश करने के लिए निकला हुआ था। इस फकीर नौजवान ने वो पत्थर चमकता हुआ उठा लिया और बलक की तरफ रवाना हो गया। कहीं दिन इसको सफर में गुजर गए। फकीर महल में पहुंच गया। बादशाह का दरबार लगा हुआ था। वजीर गुस्से से कहने लगा कि तुम फिर आ गए, तुम्हें तो शर्त बताई गई थी। फकीर बोला कि जी, मैं अपनी शर्त पूरी करके आया हूँ। ये सुनकर वो वजीर बड़ा परेशान हुआ कि इसको वो सैया रंग का हीरा मिल कैसे गया। इस फकीर ने वो चमकता हुआ हीरा बादशाह के पास रख दिया। सभी लोग इस मनफूरद और नायाब हीरे को देखकर हैरान रह गए। फकीर ने वो हीरा बादशाह को देते हुए कहा कि मैंने आप लोगों की शर्त पूरी कर दी है। अब अपनी शर्त के मुताबिक मेरी शादी शहजादी से करवा दीजिए। वजीर बोला कि इसमें कोई शक नहीं कि तुमने हमारी शर्त पूरी की है, लेकिन तुमने एक शर्त और पूरी करनी है। ये सुनकर फकीर मायूस हुआ, लेकिन फकीर के इक्ष ने फकीर को हिम्मत दी। इसने पूछा कि दूसरी क्या शर्त है। वजीर बोला कि शहजादी के कानों के आवेजियों के लिए मोती दरकार हैं। वो मोती बहुत दिलकश और खूबसूरत हैं। अगर वो मोती तुम ले आओ तो तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दी जाएगी। फकीर अब वहाँ से मायूसी के साथ बाहर निकल पड़ा। इसको अब एक और मंजिल पार करनी थी। वो फकीर नौजवान शहजादी के इश्क में अब झला हो गया था। वो इसी सोच में एक समंदर की तरफ निकल गया। इस फकीर के इश्क में जुनून था। इसने ये फैसला कर लिया कि वो अपने हाथों से इस समंदर को खाली कर देगा और वो मोती ढूंढ निकालेगा। इस आशिक फकीर को समंदर के पास बैठे कहीं दिन गुजर गए। वो कहते हैं ना कि वो बर्बाद गए जो हो गए इश्क दीवाले। इस फकीर ने अपने हाथ आसमान की तरफ बुलंद किए और अल्लाह ताला से दुआ करता चला जा रहा था। इसकी दुआ अभी तक खत्म नहीं हुई थी कि इतने ही देर में समंदर में एक मोतियों से भरी हुई लहर आई। इस फकीर आशिक के दामन में काफी सारी मोतियां आ गईं और वो फकीर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए सरजदा अरेज हो गया। खुशियों से मारे पड़ता अब वो मोती लेकर बला की तरफ लौट गया। इस फकीर ने खुशी खुशी अपने दामन में जो भी मोती थे वो बादशाह के सामने पेश कर दिए, इस उम्मीद के साथ कि अब वो अपनी मंजिल पा चुका है। अब वो फकीर मगरूर आवाज में कहने लगा। वजीर बोला कि तुम कहाँ और शहजादी कहाँ? अभी भी वक्त है कि तुम अपने इस जुनून से बाहर निकल आओ। इतनी ही देर में एक कजीन दौड़ते हुए आई। बादशाह सलामत से कहने लगी कि शहजादी बेहोश हो गई हैं। वो एकदम से जमीन पर गिर गई हैं। हमें नहीं पता कि शहजादी को क्या हुआ है। बादशाह सलामत अपनी बेटी को देखकर बड़ा परेशान हुआ कि मेरी बेटी को एकदम से क्या हुआ है। तबीब ने शहजादी की नब्ज को चेक किया तो कहा कि शहजादी की मौत हो चुकी है। सारा बलक शहजादी की मौत पर दुख मना रहा था। इसी दुख भरे आलिम में इस फकीर के चेहरे पे ऐसा कोई गम न था। वो फकीर भी शहजादी के जनाजे में शामिल हो गया। शहजादी को मिट्टी में दफन कर दिया गया और इस तरह रात हो गई। पूरा बलक सो गया, लेकिन इसी दौरान कोई जाग रहा था। वो फकीर अपने इश्क में जग रहा था। वो अपने इश्क के जरिए वो शाही
सिपाही कब्रिस्तान में जा पहुंचा। वो फकीर रोता हुआ शहजादी के कब्र के पास आ गया। शहजादी की कब्र से मिट्टी हटाने लगा। तख्ता हटाकर वो शहजादी के बेजान जिस्म को अपने साथ लेकर निकल पड़ा। वो फकीर शहजादी को अपनी झोपड़ी में ले गया और एहतराम के साथ लिटा दिया और फिर रो रो कर अल्लाह ताला से दुआ करने लगा। इस फकीर की दुआ करने की ही देर थी। इतनी ही देर में इसकी झोपड़ी में एक तबीब हाजिर हुआ। इस तबीब के साथ एक शागिर्द भी था। वो तबीब कोई पहुंचा हुआ समझदार तबीब था। इस तबीब ने शहजादी का हाथ चेक किया और कहा कि परेशान मत हो बेटा, शहजादी अभी जिंदा है। इस तबीब ने जड़ी बूटियों से बनी हुई दवाई इस फकीर को दी और कहा कि शहजादी के पाँव के ऊपर मालिश की जाए। शहजादी के पाँव में जब मालिश हुई तो शहजादी ने हरकत के जरिए अपनी आंखें खोल दी। फकीर शहजादी को देखकर हैरान और बड़ा खुश हुआ। शहजादी ने एक अजनबी जगह देखी तो फकीर से पूछा कि मैं कहाँ हूँ। फकीर बोला कि आप परेशान ना हो, आप एक महफूज जगह पर हैं। इसके बाद इस फकीर ने अपने इश्क की तमाम दास्तान इस शहजादी को सुना डाली। शहजादी इस फकीर के इस जुनून इश्क को देखकर बड़ा हैरान हुई। इस तबीब ने शहजादी की रजामंदी से फकीर और शहजादी का निकाह पढ़ा दिया और अपने शागिर्द को गवाह बना लिया। इस फकीर की खुशी का कोई ठिकाना ना था। वो खुशी के मारे अल्लाह के सजदे में गिर गया और शुक्र करने लगा। वो फकीर बोला कि बेशक मेरे रब, तेरे इख्तियार में सब कुछ है, तुझसे कभी ना उम्मीद ना होना चाहिए। अब इस फकीर की जिंदगी में खुशियाँ आ चुकी थी। शहजादी ने भी अपने फकीर शोहर का साथ दिया और इस फकीर के साथ इसी झोपड़ी में रहने लगी। बादशाह सलामत अपनी बेटी की मौत की खबर सुनकर अब पहले जैसा नहीं रहा था। वो बड़ा दुखी रहने लगा था और दीन की तरफ मतुजा हो गया था। इसने इस शहर में बहुत सारे मदरसे और मस्जिदों की तामीर करवाई थी। बादशाह सलामत हर हफ्ते में बच्चों की महफिल करवाता था। इस हफ्ते भी बादशाह सलामत ने बच्चों की महफिल करवाई। बादशाह सलामत की नजर एक बच्चे पर पड़ी। बादशाह की नजर इसी बच्चे के चेहरे पर ठहर गई। बादशाह सलामत ने वहाँ से किसी इंसान से पूछा कि इतना रोशन चेहरे वाला बच्चा किसका है। वो इंसान बोला कि बादशाह सलामत कुछ दिन पहले ही इस बच्चे का बाप इसको यहाँ पर लेकर आया है। बादशाह सलामत ने कहा कि इसके बाप को कल सुबह हमारे पास लाया जाए। इस फकीर ने जब ये बात सुनी तो शहजादी को सारी बात बताई। शहजादी बोली तो आज इस राज को फाश करने का वक्त आ गया है। फकीर अपना भेष बदल कर अपने बच्चे को लेकर महल में दाखिल हो गया। बादशाह सलामत इस बच्चे को मलिका के पास ले गया और कहा कि इस बच्चे की शक्ल हमारी महरूम शहजादी के साथ मिलती है। मलिका बोली कि कुछ भी हो, मुझे ये बच्चा चाहिए। बादशाह कहने लगा कि इस बच्चे का वालिद कोई फकीर मालूम होता है और इसका मतलब ये नहीं कि हम इस फकीर से बच्चे को जुदा कर दें। मलिका कहने लगी कि इस बच्चे का चेहरा बिल्कुल ही मेरी बेटी जैसा है। आप इस फकीर और इसकी बीवी को भी महल में रख लें, इसी तरह हमारे साथ ये बच्चा भी रहेगा। बादशाह भी मलिका की बात से बड़ा मुतासिर हुआ। बादशाह सलामत ने अब इस फकीर से कहा कि हमारी मलिका इस बच्चे को अपने साथ रखना चाहती हैं। फकीर बोला कि इस बच्चे की माँ कभी भी इजाजत नहीं देगी। बादशाह सलामत कहने लगा कि ऐसा भी हो सकता है कि इस बच्चे की माँ और वालिद आकर इस महल में रहेंगे। फकीर बोला फिलहाल मैं इस बारे में आपको कुछ नहीं कह सकता। बादशाह बोला कि आपकी बीवी से मेरी मलिका खुद बात कर लेंगी। अब मलिका शहजादी से मिलने के लिए फकीर की झोपड़ी में चली गई। मलिका ने जब सामने अपनी बेटी को देखा तो देखकर बड़ी परेशान हुई और कहने लगी कि तुम मेरी बेटी हो, मुर्दा कैसे जिंदा हो गया? क्या मैं ये सच में देख रही हूँ कि तू ही मेरी बेटी है? शहजादी बोली कि जी अम्मा, मैं ही आपकी बेटी हूँ। इसके बाद शहजादी ने सारी हकीकत से पर्दा उठा दिया। होते होते ये बात पूरे बलख में फैल गई। बादशाह ये खबर सुनकर खुशी से फूले नहीं समा रहा था। बादशाह सलामत ने फकीर को अपने गले से लगा लिया और इसके बाद वो फकीर बादशाह बेटी सब खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से ये सबक हासिल होता है कि किसी भी हालत में हमें अल्लाह ताला से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। परेशानी और दुख में दुआ सबसे बड़ी ताकत है। हमें हमेशा दुआ करते रहना चाहिए। नाजरीन, आपको आज की ये
کہانی ضرور پسند آئی ہوگی۔ ناظرین، اسلامک واقعات، سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے اللہ حافظ۔